students, how are you all? I hope that you remember something from the previous lecture. तो previous lecture के बारे में ना let me tell you हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर. Basically in that we learn about a trick that is CDCRT. And CDCRT is a scientific method of doing at the study of the human mind, in which we try to understand the solution of the problem, that how to frame an hypothesis and how to reach toward a perfect solution theory in actual. And this was CDCRT, if you remember, right? Yeah. So basically अब इसके अंदर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट वी विल राइट अबाउट एंड वी विल अंडरस्टैंड about the type of information that we collect in research. This is the new topic, so just open this page in your textbook, because today we are going to cover the most important aspect of this chapter. And if you are not into this chapter, then be attentive. एक जो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी वो ये है कि one momentary lapse of concentration can disrupt your preparation, and you won't able to concentrate. So while preparing, keep your phones away, take out your book, take out your note, and try to create notes along with me, because this is only gonna help you. So आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे अबाउट नेचर ऑफ डेटा. सो सबसे पहले ना यहाँ पे ना मैंने कुछ आपके लिए ना फन फैक्ट है ना लिखे हुए हैं, जो आपको अंडरलाइन कर लेने हैं. जैसे जो सिंगुलर यूनिट होती है डेटा की, वो होती है डेटम. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अ सिंगुलर यूनिट, लाइक अगर आपको किसी के बारे में कोई एक इंफॉर्मेशन पता है, तो डोंट कॉल इट आई हैव डेटा अबाउट हर, कॉल दैट डेटम. इट्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स कोवर्ट बिहेवियर एंड व्हाट्स ओवर्ट बिहेवियर. ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं. कोवर्ट बिहेवियर जिसको हम नहीं देख सकते. डेटा के अंदर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी आता है इंसान का, मेंटल प्रोसेसेस भी आते हैं, राइट? तो जस्ट अंडरलाइन दीज कोवर्ट ओवर्ट बिहेवियर, मेंटल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस. अभी होता क्या है मतलब डेटा, तो ये याद रखना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, एंड यू कैन यूज दिस लाइन whenever you are writing answer related to this. So this is this talks about the reality, and basically whenever we get data about someone, then it helps us to verify something, to falsify something, or to validate something. So it should be understood that data is not an important entity. And when I am saying that it's not an important entity, means it is leading to something, and it is it is because of something. So there is a cause and effect. This is the second point that you need to remember, that when you think that data is independent, it's not. It has correlation with something. The cause and effect, it follows the principle of determinism. Now they are located in the context and are tied to the method and theory that governs the process of data collection. And what we are talking about here कि देखो, जब हम डेटा की बात करते हैं, ठीक है, तो वी आर कलेक्टिंग दैट डेटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल के लिए हमने पिछले इसमें पढ़ा था कि जो ईव है, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT, राइट? सो when we are collecting this idea that he is preparing for IIT, so the what is the context that why he is preparing, किस condition क्या है जिसमें वो पढ़ रहा है, मतलब कौन सी condition में he is preparing, and it is it try to some method? Then yes, right, we have used observation method या फिर information method या फिर interview method इस proper fact को collect करने के लिए कि ईव IIT के लिए पढ़ रहे हैं. अब हमें ना ज़्यादा है ना टाइम ना वेस्ट करके इस चैप्टर को आज क्विकली ख़त्म करेंगे, ठीक है? एंड बी विद मी, प्रॉपर अटेंशन देना फॉर द टाइम. एंड अभी क्या करना है, यू जस्ट ऑब्जर्व दिस. देखो, डेटा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फिज़िकल और सोशल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है. फिजिकल कंडीशंस क्या होती है, सोशल कंडीशन क्या होती है, यू नो दिस वेरी वेल. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट बेसिक्स. अब मेथड्स की बात करते हैं कि डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. तो सर्वे वी यूज़, आपको पता है सर्वे के बारे में, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. सर्वे के अंदर हम जाते हैं फील्ड पे एंड वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस. इंटरव्यू, ऑल नो दैट देयर इज एन इंटरेक्शन. इट कैन बी इंडिविजुअल एंड इट कैन बी ऑफ एन ग्रुप.
Experiments, you know that you perform something and as a result there is some consequence and you observe it. So this is experiment method. Observation is that when you're not interacting with the person, you're sitting at a distance location and you are keeping the record of the activities of the behavior that the person is performing, right? So these are the methods that we use. नाउ रिस्पॉन्डेंट कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल का हम इंटरव्यू कर सकते हैं, ग्रुप का हम इंटरव्यू कर सकते हैं. ऐसे हम जो है सर्वे हम कर सकते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप का ही होता है वैसे तो ये सर्वे, राइट? इंडिविजुअल को तो होता नहीं है. एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, राइट? तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ग्रुप पे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं. येस, एक्सपेरिमेंट लोगों पे भी होते हैं भाई साइकोलॉजी में, एंड डोंट बी शॉक अबाउट इट. ऑब्जर्वेशन सिमिलरली देयर इज एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप ऑब्जर्वेशन, राइट? यंग एंड ओल्ड पे हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल में हो सकते हैं, और रूरल और अर्बन पे हो सकता है. आई एम कंसिडरिंग कि आपको ये सब चीज़ें ना पता होगी, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक्स एंड यू कैन रीड ऑन योर ओन फ्रॉम द बुक. Okay, now let's go into this, that what are the type of information that we collect. Now demographic क्या होता है? Whenever we are talking about the demographic information, हम लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो डेमोग्राफिक यहाँ पे यू कैन राइट इन योर बुक ऑल्सो पर्सनल, जैसे कि नाम क्या हो गया, एज क्या हो गया, बर्थ क्या है, ठीक है, कितने भाई बहन है उसके, और काम क्या करते हैं, पढ़ाई कहाँ तक करी है, शादी हुई है नहीं हुई है, दीज ऑल थिंग, रिलीजन क्या है, पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी है, दीज ऑल आर डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन. वेन एवर यू टॉक्स अबाउट डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर रिट्रीवल क्यू. ओके, नाउ सेकेंड इज फिजिकल इन्फॉर्मेशन. फिजिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है किस लोकेशन से मतलब जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है. हिली रीजन है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल है, ठीक है, सवाना रीजन है, कहाँ से आ रही है ये इन्फॉर्मेशन. एंड मोड्स ऑफ इकनॉमी, हाउसिंग कंडीशन, साइज़ ऑफ द रूम, कहाँ पे वो रहता है, घर में कितने कमरे हैं, घर के आसपास के कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज़ होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल डाटा. फिजियोलॉजिकल मतलब हेल्थ से रिलेटेड डाटा. हार्ट बीट कितनी है, वॉकिंग स्टेप कितने हैं, ठीक है, फटीग कितना है. लेकिन ये टर्म है गैल्वेनाइज्ड स्किन रेजिस्टेंस. तो ये क्या बताता है? यू सर्च दिस ऑनलाइन, गूगल करना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस, है ना. गूगल करोगे तो यू विल एबल टू नो अबाउट इट एंड राइट दिस इन कमेंट. नाउ देयर इज इलेक्ट्रो, ठीक है, एनसीफेलोग्राफ, EEG, देन देयर इज ब्लड लेवल. तो ये सब चीज़ें क्या होती है इसके अंदर, फिजियोलॉजिकल डाटा के अंदर हम यूज़ करते हैं. तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 5 एग्जाम्पल फ्रॉम ईच एंड यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब. साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस कितनी है, इमोशनल कितना है, हेलुसिनेट होता है या नहीं होता है, राइट? और परसेप्चुअल एबिलिटी कितनी है, वो हाउ डज द पर्सन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंसेशन प्रॉपर मतलब है या नहीं है. तो इंटेलिजेंट, यू कैन सी द इमेज, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, दीज ऑल थिंग. अब हमें मेन इसके अंदर क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है. बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपकी बुक में भी दी हुई है ये रही, ठीक है. तो वही इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, देखो. Whenever we are collecting the information, whenever we are taking the note of the data, whether it's from the individual, group, by obeying any of the above method, तो we need to rank it. Like अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट बीट की, तो you cannot say ना, you will tell the number, अगर ज़्यादा है तो कितनी थी, अगर कम है तो कितनी है ना. डेटा का मतलब क्या है, when you categorize it और when you rank it, right? तो ये दो चीज़ें important है. Whenever you are measuring with a view of measurement, ठीक है, it is important to tell the form of the category, tell the rank, ठीक है, और the order, या फिर उसको रैंक स्कोर में कन्वर्ट कर देना. तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट दिस यू डू विद द डेटा सो दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. अब एक एग्जाम्पल सुनो. फॉर एग्जाम्पल यू गॉट योर ब्लड टेस्टेड, कि आपकी ब्लड में प्लेटलेट्स कितनी है, या फिर आपकी ब्लड के अंदर जो है आपका हीमोग्लोबिन कितना है, राइट? साइज ऑफ द RBC कितना है, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल गई पेपर पे लिखी हुई. बट हाउ यू विल नो कि वो ज़्यादा है कम है, व्हेन दे विल गिव यू द स्कोर्स, राइट? तो आप क्या करोगे, मेजर करोगे. अब कैंसर लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, हम ये भी तो बोल सकते हैं सिंपल कैंसर है. बट क्यों बताया जाता है? टू नो द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, राइट? टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड इट इन द कॉन्टेक्स्ट कि हमें ट्रीटमेंट क्या देना है, राइट? सो वेन एवर यू आर टॉकिंग इन साइकोलॉजी एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डाटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टू मेक सेंस ऑफ द डाटा. दैट्स वाई इट इज़ डन.
सो यही कह रहे हैं कि कैटेगरीज हम कर सकते हैं. कैटेगरीज में क्या होता है, हाई बोलेंगे, लो बोलेंगे, येस बोलेंगे या नो बोलेंगे, ये है कैटेगरी. रैंक 1 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या है. स्कोर्स हम कितने भी दे सकते हैं, राइट. कि अगर मान लो कि हम 100 में से स्कोर दे रहे हैं एंड इफ़ आई से दैट यू आर परफॉर्मिंग 50, उसका मतलब क्या है कि यू आर परफॉर्मिंग एवरेज, यू नीड टू इम्प्रूव. इफ़ यू आर परफॉर्मिंग 90, what does it mean, what does it signify that you are doing good in your life, right? So this is all. नेक्स्ट अभी हमें ना फटाफट से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. डोंट लूज़ योर अटेंशन. आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो योर बुक एट दिस मोमेंट फॉर दिस टॉपिक. वाई? बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. बट मेक श्योर दैट वंस आई एम डन यू रीड दिस फ्रॉम योर बुक, और you know in the middle जैसे मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूँगी तो what you do that you pause this video for once and you just read it yourself. If it's making sense, it's okay. Otherwise you can ask the doubts in the comment section. Okay, comment section for students should be used properly and appropriately for asking doubt. No inappropriate comment will be tolerated. I won't tolerate it. So let's just begin with the method of inquiry. Okay, listen, whenever they are asking you about the definition, what is an observation method? So observation method की मैंने ना सीधे यहाँ पे ना definition ही करवा दी है, systematic watching and recording of behavior. अब why I am saying systematic watching, मैं simple watching भी तो लिख सकती थी, watching and recording the behavior. But when we are observing the behavior of a person in psychology, we can't just observe some random behavior. It has to be pre-planned what we are going to observe, which behavior is appropriate. And we are calling psychology a scientific field, so it's important to go with a systematic procedure, right? मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस बारे में. तो दिस इज़ दिस ऑब्जर्वेशन. क्या है ऑब्जर्वेशन? इज़ अ वेरी पावरफुल टूल इन साइकोलॉजी एंड इट इज़ most of our psychologists use the observation technique to take notice of some behavior which they are looking in their study. And I don't know that if you have experienced things like this, that your teacher she observe you in your classes, right, in order to write the anecdotals or the narratives about you. Yes, this is done, and as a teacher we are supposed to do that. तो साइकोलॉजी के अंदर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिक वॉचिंग एंड सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग द बिहेवियर, राइट. एंड वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी रैंडम बिहेवियर. दिस बिहेवियर इज़ वेरी स्पेसिफिक बिहेवियर विच वी मेंशन. अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बिहेवियर हम ऑब्जर्व करेंगे, राइट. तो कुछ टर्म्स आपकी बुक में लिखी है, जैसे कि सिलेक्शन हो गया. तो सिलेक्शन यू नो दैट वी विल सिलेक्ट एप्रोप्रिएट बिहेवियर. जो हमें ऑब्जर्व करना है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. नेक्स्ट आपका क्या है, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग के अंदर आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक बिहेवियर. आपको जो भी बिहेवियर दिख रहा है, जैसे कि हमें ये देखना है कि एक बच्चा जो है जब वो पानी पीने के लिए जाता है वाटर टैंक के पास, तो वो कैसा क्या करता है, राइट. नॉटी करता है, नॉटी है, या फिर जैसा वो क्लास में बैठा रहता है वैसा ही है. सो यू वांट टू ऑब्जर्व दिस बिहेवियर. अब आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके खड़े हो जाओगे, राइट. जो भी वो बिहेवियर करेगा यू विल नोट दैट. फिर आप क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे उस डाटा को. तो एनालिसिस इज डन देन, राइट. सो ये क्या बोल रहे हैं कि जो 3 चीज़ें हैं ना ऑब्जर्वेशन के अंदर, जैसे कि सिलेक्शन हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया और एनालिसिस ऑफ द डाटा हो गया. अच्छा देखो, एनालाइज का मतलब क्या है. एक बिहेवियर है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में समझेंगे, कोई ऐसा वो नहीं करेंगे. एनालाइज का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर ऊपर से देख लेना. इट्स मीन्स टू ब्रेक दिस बिहेवियर, ठीक है, इनटू मल्टीपल बिहेवियर. जैसे कि वो स्माइल कर रहा था किसी को देख के, या फिर पानी को देख के वो खेल रहा है, या फिर पीने के बाद ही देयर सेटिस्फेक्शन एंड वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुका है. तो यू आर ब्रेकिंग इट एंड देन यू आर कंबाइनिंग दिस बिहेवियर टू मेक सम मीनिंग, राइट. तो ब्रेक को होता है सिंथेसाइज करना. जब आप इन सारे बिहेवियर के कंपोनेंट को तोड़ के जोड़ के एक नया मतलब निकालते हो, तो दैट इज़ एनालिसिस इन साइकोलॉजी. आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है. बिहेवियर को जब आपने मल्टीपल कंपोनेंट में तोड़ा, दैट इज सिंथेसिस ऑफ द बिहेवियर, एंड नो टीचर इज गोइंग टू टीच यू इन सच डिटेल. नाउ एनालिसिस ऑफ द डाटा आपको समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन.
तो अलग अलग टाइप की है ना ऑब्जर्वेशंस होती है, जैसे नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। अब सुनो, एक बिहेवियर होता है, हम उसको बिहेवियर को साइकोलॉजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। ओके, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर क्या होता है? वो बिहेवियर जो बंदा या कोई भी लड़की या फिर लड़का, कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर बिना किसी फेकनेस के प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। If you are in your room and no one is watching you, believe me, your behavior is a spontaneous behavior. There's no element of fakeness. But when you are going out in park, you will dress up sophisticatedly and you will behave sophisticatedly. You will try to fit in these norms of the society. So this is a spontaneous behavior which you are showing in your room, and non-spontaneous behavior which you are showing when the other people are present around you, right? सो ये होते हैं स्पॉन्टेनियस। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर वी ऑब्जर्व द पर्सन इन द रियल लाइफ सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम चुपके से कैमरा लगा देंगे एंड वी विल ऑब्जर्व द पर्सन इन रियल लाइफ सेटिंग। ओके, एंड क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल make sense of the behavior, so you will get to know the determined behavior, specific behavior आपको मिलेगा, it will be the real behavior. Okay, सो ये चीज़ होती है नेचुरलिस्टिक बिहेवियर में, दे स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। लेकिन नेचुरलिस्टिक बिहेवियर में प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि बाहर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट? कोई भी ऐसे रैंडम चीज़ आके आपकी रिसर्च को, आपकी ऑब्जर्वेशन को, आपकी डेटा कलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सडन आप बाहर किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे थे नेचुरल सेटिंग में, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, आप वेट कर रहे थे, आए उस बच्चे का, दूर से बैठ के आप देख रहे हो, राइट? अचानक से बारिश आ गई, सारा प्लान चौपट, बच्चे सारे अंदर भाग जाएंगे और आप देख ही नहीं पाओगे कि वो बिहेवियर था कैसा। तो ये एक लूप होल है इसका, राइट? अब क्या है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम अनकंट्रोलेबल, ऐसी कंडीशन आ जाती है या फिर ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन को ख़राब कर देते हैं, तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि नहीं यार, इस ऑब्जर्वेशन को अगर हम कहीं लैब में कंडक्ट करते हैं ना, जहाँ पे बारिश जहाँ पे एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो है इनको हम रोक सकते हैं, तो ऐसी जगह पे हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड दिस इज़ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन इन ए लेबोरेटरी। अब लैब में क्या होता है, लेबोरेटरी में क्या होता है, यू आर कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल वेरिएबल। आपने इंश्योर किया कि बारिश या फिर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एंड बट अब क्या होगा, आप यू विल नॉट गेट द स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, राइट? तो ये दो चीज़ें थी जो कंट्रोल और नेचुरलिस्टिक में पता होनी चाहिए। एक ये वर्ड स्पॉन्टेनियस हो गया, एक ये वर्ड हो गया एक्सटर्नल वेरिएबल। भाई ये लिख लो, ये मैं बोलूँगी लेकिन लिखने ज़रूरी है, बुक में लिख लिया करो। दिस विल एड मीनिंग और इट विल एड स्ट्रेंथ टू योर आंसर और टू योर एक्सप्लेनेशन। अब देखो, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट में बहुत आसान है। इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप, व्हाट डज इट मीन? दैट यू आर डूइंग एन इंट्रैक्शन, राइट? तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंट्रैक्शन। बट व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, व्हेन यू आर नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, देन दैट इज़ नॉन पार्टिसिपेंट। तो ऑब्जर्वेशन जब हम जाएंगे और हम बोलेंगे ग्रुप के साथ, जैसे कोई कई बार आपने देखा नहीं है, बहुत सारे बच्चे कुछ गेम खेल रहे होते हैं एंड सडनली टीचर आता है और टीचर भी उनके साथ खेलने लग जाता है। बहुत बार देखा है ना। तो वो क्या है, द टीचर इज़ बिकमिंग डूइंग द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बट कई बार ऐसा आपने देखा होगा, आप गेम खेल रहे हो तो टीचर वहाँ पे दूर आके बैठ जाएगा एंड दे विल जस्ट ऑब्जर्व यू। तो वो क्या है, दैट इज़ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे है ना, ये एग्जाम्पल दे रखा है क्योंकि ये बॉक्स है और हम इसको पढ़ेंगे अभी। भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत मज़ेदार है, तो मैं रीड नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट में बताऊँगी। देखो, दो फिलोसफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है बिब लाटेन एंड जॉन डार्ले। तो 1970 में इन्होंने स्टडी करी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया और बोला कि है ना, हम आपका है ना इंटरव्यू करने वाला है, बट उससे पहले है ना कुछ प्रिलिमिनरी क्वेश्चनियर्स हैं, उसको आप पूरा कर लो एंड देन हम आपको बुलाएंगे और इंटरव्यू लेंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब एक एक करके उनको ना रूम में भेजा उन्होंने, अकेला इंडिविजुअली। और कई बार तो क्या हुआ कि रूम में 2 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट थे, 2-3, एंड कई बार ये बच्चे अकेले प्रेजेंट थे।
अब क्या हुआ, सडनली उस रूम में ना स्मोक आना शुरू हुआ। जो जिन रूम्स में इंडिविजुअली ये बच्चे बैठ के क्वेश्चनेयर कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट कर दिया कि स्मोक भरा हुआ है, भर रहा है रूम में। बट जहाँ पे 2 या 3 बच्चे थे, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, है ना, या फिर उन्होंने बताया नहीं, फिर थोड़ा टाइम लेके बताया। तो इससे हमें क्या पता चला, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट का। एंड यहाँ पे कैमरा लगे हुए थे, या ठीक है, और इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा था कि व्हेन द स्टूडेंट्स वेटेड विथ 2 अदर कॉन्फिडरेट्स who were interested beforehand by the research to do nothing, only 10% of the student reported the smoke. तो ये क्वेश्चन ये था कि क्या वो रिपोर्ट करते स्मोक को या नहीं करते। दिस वॉज दी ऑब्जर्वेशन डन, है ना। तो ऐसा क्या है कि इसके अंदर देखो, जो 2 लोग लेबॉर्ट्री में बैठे हुए थे, या फिर एक बार क्या जब कोई नहीं बैठा हुआ था, तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्पॉन्टेनियस बिहेवियर कब आया और कब नहीं आया, राइट। तो ये 2 कुछ चीज़ें यू शुड नो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट मेथड, मेक श्योर दैट यू हैव योर फुल अटेंशन एट दिस पॉइंट। नहीं भी है तो वीडियो को पॉज करो, ड्रिंक सम वाटर, टेक पेन इन योर हैंड एंड बी अटेंटिव, बिकॉज this next method is one of the most important method in psychology that we use in our day-to-day experimentation. Whenever we create hypothesis, we try to use this method in doing that research. Experiments are generally cause and effect. What does it mean? That some stimulus will come up in the environment, and it is going to produce some response in the society. There is going to be some consequence of that stimulus, right? So if you will see a snake, so this is a stimulus, you saw a snake, what is supposed to be your next reaction? You will jump, you will try to reach some place where the safety of yours can be ensured. So this is basically a cause and effect relationship. And in experimentation method, we will try to prove our hypothesis. Hypothesis, I told you before, what is it? It's tentative solution, and we have done this in the last videos. If you have not watched that video, watch it again. But hypothesis का मतलब होता है एक tentative solution. I'm not going to explain you this here. ठीक है, cause and effect relation. नाउ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, ये इनमें हम है ना कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे और जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहला है, देखो, इवेंट्स और वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स, तो मैं इसके एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने स्नेक देखा रूम में, अब दिस इज़ अ वेरिएबल और एन इवेंट, ठीक है। अब क्या हो सकता था, अगर वो स्नेक जो होता वो एक ग्लास के एक केज में होता, तो वो वेरिएबल डिफरेंट होता, राइट। जो आपका रिएक्शन आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इवेंट और अ वेरिएबल। आप जंप कर रहे हो या आप उस रूम से भाग रहे हो, राइट, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल।